اس عید کے بعد اس کی بیٹی کی شادی تھی۔ لڑکے والوں نے بھاری بھرکم جہیز کا مطالبہ بھی کر رکھا تھا۔ باپ کو امید تھی، ایک آسرا تھا کہ رمضان میں وہ اپنے باغ کے پھل منڈی میں بیچے گا، اچھا خاصا پروفٹ ملنے والا تھا۔ اس نے کمیشن ایجنٹ سے بات بھی کر رکھی تھی، قیمت بھی کسان کی سوچ سے زیادہ بتائی گئی تھی۔ وہ بس پھل کو اپنے باغ سے سمیٹنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ اس کی بیٹی کی ڈولی گھر کے آنگن سے ضرور نکلے گی، وہ بھی اپنے گھر کو ضرور جائے گی۔ لیکن جب رمضان آیا تو اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ روتے ہوئے چلاتے ہوئے بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، میں نے پورا سال باغ میں محنت کی، مگر جب فصل بیچی تو اتنے پیسے بھی نہیں ملے جتنے شہر میں ایک مزدور دن میں کما لیتا ہے۔ کمیشن ایجنٹ اپنے ملازم کو کہتا ہے، جلدی کیا ہے، ابھی مال گودام میں رکھو، رمضان آنے دو، تب قیمت اوپر جائے گی۔ گودام مالک بھی بہت ہوشیار تھا، اس نے سوچ رکھا تھا مارکیٹ میں تو ابھی مال نہیں جائے گا، جب قیمت دگنی ہو جائے گی تب نکالیں گے۔ یہ کہانی صرف ایک منڈی میں اشیاء کی قیمتیں 4 گنا بڑھ جانے پر نہیں، یہ ایک ایسے نظام کی سٹوری ہے، ایک ایسے مافیا کی کہانی ہے جہاں چند لوگ منافع کماتے ہیں اور لاکھوں گھر صرف کھجور پر سحر و افطار کرتے ہیں۔ آج ہم ایکسپوز کرنے والے ہیں فروٹ مافیا کو۔ آج کی کرائم سٹوری میں بتانے والا ہوں کہ رمضان المبارک میں فروٹ مافیا، ذخیرہ اندوز، ٹرانسپورٹ مالک اور کمیشن ایجنٹس کس طرح سے اشیاء کی قیمتوں کو اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں، جس سے فرق پڑتا ہے صرف ایک غریب کسان کو، آپ کو، مجھے اور ہر اس فیملی کو جو مڈل کلاس ہے، جو دہاڑی دار مزدور طبقہ ہے۔ ایک وقت کا کھانا ملتا ہے تو اگلے وقت فاقہ کرنا پڑتا ہے، سحر و افطار میں کھجور کا ہی آسرا لیا جاتا ہے، عید کی شاپنگ کا تو سوچ ہی نہیں سکتے۔ کس کرب سے گزرتے ہیں وہ لوگ، بچوں کو کیا دلاسے دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کی سٹوری ہے غریب چاچا شہزاد کی۔ چاچا شہزاد کی کہانی سننے سے پہلے یہ جان لیں کہ اس وقت پورے پاکستان کے بڑے چھوٹے شہروں میں فروٹس اور ویجیٹیبل فراہم کرنے والی مارکیٹس کون سی ہیں اور کہاں کہاں واقع ہیں، کیونکہ یہی وہ مارکیٹس ہیں جن سے گزر کر فروٹ اور دیگر اشیاء ہمارے افطار اور سحری کی زینت بنتے ہیں۔ لیکن ان اشیاء کی قیمتیں کنٹرول کیسے کی جاتی ہیں وہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ پاکستان کے چاروں صوبوں میں پھل اور سبزیوں کی بڑی ہول سیل مارکیٹس موجود ہیں، جہاں سے پورے شہروں اور علاقوں کو اشیاء خورد و نوش سپلائی کی جاتی ہیں۔ سندھ میں کراچی کی سب سے بڑی منڈی نیو سبزی منڈی ہے، جو سپر ہائی وے M9 پر سہراب بورڈ کے قریب واقع ہے، اور یہاں سے روزانہ سینکڑوں ٹرک فروٹس اور سبزیاں بھر کر لے جاتے ہیں۔ پنجاب میں اہم ہول سیل مارکیٹ بادامی باغ فروٹس اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ ہے، جو لاہور میں بادامی باغ بس اسٹینڈ کے قریب واقع ہے اور پورے پنجاب کو سپلائی فراہم کرتی ہے۔ KP میں بڑی سبزی منڈی پشاور ہے، جو GT روڈ کے قریب پشاور میں قائم ہے اور صوبے کے مختلف علاقوں تک فروٹ اور سبزیاں پہنچاتی ہے، جبکہ بلوچستان میں سبزی منڈی کوئٹہ سریاب روڈ کوئٹہ پر واقع ہے، جہاں بلوچستان اور سرحدی علاقوں سے آنے والا فروٹ اور سبزیاں پورے شہر میں تقسیم ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ ان اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے۔ چلیں آپ کو کہانی اسٹائل میں سمجھاتا ہوں، جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ کس طرح چند پیسوں کے عوض لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، خاص کر رمضان میں۔ رمضان المبارک آنے میں صرف چند دن باقی تھے۔ کراچی کی بڑی فروٹ منڈیوں میں ٹرکوں کی لمبی قطاریں لگنا شروع ہو چکی تھیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پورے شہر کی افطاری کا فیصلہ ہوتا ہے، مگر اس منڈی میں ایک ایسا کھیل بھی کھیلا جاتا ہے جس کے بارے میں عام لوگ کم ہی جانتے ہیں۔ یہ کھیل فروٹ مافیا اور ذخیرہ اندوز مافیا کا ہے، اور اس کہانی کی ابتدا ہوتی ہے ایک کسان چاچا شہزاد سے۔ کسان چاچا شہزاد جنوبی پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کا ایک چھوٹا سا باغ تھا جہاں وہ پھل اگاتا تھا۔ پورا سال چاچا شہزاد دھوپ، بارش اور بیماریوں سے لڑ کر اپنی فصل کو بچاتا تھا۔ چاچا شہزاد کی امید تھی کہ رمضان کے مہینے میں فروٹ کی قیمت اچھی ملے گی، مگر جب وہ اپنی فصل لے کر منڈی پہنچا تو اس کی ملاقات ہوئی اختر سے۔ اختر منڈی کا ایک طاقتور کمیشن ایجنٹ تھا۔
पाकिस्तान की ज़्यादातर ज़राई मंडियों में किसान बराह रास्त फ्रूट्स नहीं बेच सकता। वो कमीशन एजेंट के ज़रिए फ्रूट फ़रोख्त करता है या सब्ज़ी। कमीशन एजेंट अख्तर ने चाचा शहजाद की फसल देखी और एक कम कीमत लगा दी। चाचा शहजाद ने हैरान होकर पूछा, अख्तर भाई इतना कम रेट क्यों? अख्तर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मार्केट में माल बहुत ज़्यादा है, रेट यही चल रहा है। मगर हकीकत कुछ और थी जो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। अख्तर जानता था कि चंद दिन बाद रमज़ान शुरू होने वाला है और कीमतें ऊपर जाएंगी। अख्तर ने वही फ्रूट चाचा शहजाद से कम कीमत पर खरीद कर सीधा भेज दिया सेठ काशिफ के गोदाम में। सेठ काशिफ शहर के बड़े गोदाम मालिकान में से एक था। उसके गोदामों में हजारों क्रेट फ्रूट मौजूद थे। न सिर्फ फ्रूट बल्कि सब्जियां, दाल, चावल, आटा, घी, नमक समेत सब कुछ सेठ काशिफ के गोदाम में था। इतना स्टॉक किया हुआ था सेठ काशिफ ने कि गोदाम में ये तमाम अशिया छत से टकरा रही थी। वो ये तमाम अशिया मार्केट नहीं भेज रहा था, बस डीलर से लेकर गोदाम में स्टॉक किए जा रहा था। दरअसल वो भी इंतजार कर रहा था कीमत बढ़ने का, अशिया की किल्लत का, फ्रूट का मार्केट से शॉर्ट होने का। अगर मैं कहूँ तो सेठ काशिफ ही वो बंदा था जो मार्केट में अशिया खुर्दनोश पहुंचने से रोके हुए था, बस चंद रुपयों के मुनाफे के एवज। इस प्रैक्टिस को इकोनॉमिक्स में ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहते हैं। ताजिर जानबूझकर माल रोक लेते हैं ताकि मार्केट में कमी पैदा हो जाए और प्राइसेस बढ़ जाएं। पाकिस्तान में रमज़ान के दौरान ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बाइस कीमतें बढ़ने के वाक़यात मुतअद्दिद बार रिपोर्ट हो चुके हैं। ज़रा इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। अरब न्यूज़ के इस आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल रमज़ान के दौरान खुराक की कीमतें बढ़ने की एक बड़ी वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी बताई जाती है, जिसके बाइस मार्केट में मसनूई किल्लत पैदा हो जाती है। सेठ काशिफ तो अपना गोदाम ही भर रहा था और वेट कर रहा था कि अशिया की कीमतें बढ़ जाएं, लेकिन इस खेल में एक और किरदार भी शामिल था। इनसे मिलिए, यह है गुल खान। गुल खान ट्रकों का मालिक था जो मंडी से शहर तक फ्रूट पहुंचाता था। गुल खान के 200 ट्रक मंडी में सुबह सादिक से पहले लगे हैं। यहाँ बस माल लोड हो रहा है और ये ट्रक पूरे शहर में फैल जाएंगे। दुकानें, छोटी बड़ी मार्केट्स, रेडी वाले, सबको माल वक्त पर पहुंचाना गुल खान की जिम्मेदारी है। अब गुल खान को अपना भी तो खांचा लगाना था ना, तो रमज़ान करीब आते ही गुल खान ने अचानक ऐलान कर दिया कि अब किराया दुगना होगा। जो किराया रेगुलर था अब वो नहीं लिया जाएगा। ईद का सीजन है भाई, हमें भी तो ईदी मिलनी चाहिए, इसलिए प्राइसेस बढ़ा दो। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप पेट्रोल डलवाने जाएं और सामने से वो कहे साहब 100 रुपए ज्यादा काटे हैं, आपकी तरफ से ईदी है। बस का किराया कटवाएं तो कंडक्टर 50 या 40 रुपए ज्यादा काट ले और कहे साहब ईदी नहीं दोगे क्या? बिल्कुल वैसे ही गुल खान ने बगैर आवाम से पूछे अपनी ईदी डिसाइड कर ली। वजह क्या बताई? डीजल महंगा, ट्रैफिक ज्यादा और रश। लेकिन रियलिटी ये थी कि ये भी कीमत बढ़ाने की चेन में शामिल था। ट्रांसपोर्ट महंगी हुई तो मंडी का रेट भी बढ़ गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक केले सरकारी रेट से ज्यादा कीमत पर फरोख्त होने लगे। सेब और अनार भी मुकर्ररा कीमत से ज्यादा पर फरोख्त होने लगे। जिस फ्रूट की कीमत 240 थी, रमजान शुरू होते ही 300 तक पहुंच गई। जो फ्रूट 145 रुपए किलो था, रमजान में 630 और फिर आखिरी अशरे तक 700 रुपए किलो पर भी बिकने लगा। तो समझे आप किस तरह कीमतें बढ़ाई जाती हैं, कीमतों को कंट्रोल किया जाता है। ये पूरा माफिया है भाई, जिसमें ऊपर से नीचे तक हर बंदा अलावा प्रॉफिट के हराम कमीशन निकालने के चक्कर में लगा रहता है। और यकीन कीजिए कि सिर्फ रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हराम का प्रॉफिट बनाया जाता है। और ये कोई यहूदी या इजरायली नहीं होते जो प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं, बल्कि ये कलमा पढ़ते हैं और अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं। इतना काफी नहीं, अभी और भी सुनिए। इन बढ़ती कीमतों का जिम्मेदार आप जरूर हुकूमत को ठहराते होंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि माफिया हुकूमत की बनाई फिक्स्ड रेट लिस्ट को अपने जूते की नोक पर रखते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, जिस फ्रूट की कीमत फिक्स्ड हुई 250 पर, लेकिन वो बेचा गया 350 रुपए किलो पर। आप भी यही सोच रहे होंगे कि रमजान में मंडी में रश, ट्रैफिक जैम और बहुत सी परेशानियों का सामना करते हुए ये डीलर्स अगर अशिया हम तक पहुंचा रहे हैं तो चंद पैसों का प्रॉफिट कमा लिया तो क्या होगा। दरअसल ये चंद पैसों का प्रॉफिट हुकूमत यानी फूड अथॉरिटी पहले ही दे चुकी है।
पेट्रोल, लेबर, ट्रांसपोर्ट सब कुछ निकाल कर भी सेठ के पास फिर भी बहुत कुछ बच जाता है। अगर कुछ नहीं बचता तो आपके लिए और मेरे लिए, रेहड़ी वाले मजदूर के लिए, दिहाड़ीदार तबके के लिए। और बड़ी हैरान कुन बात बता दूं आपको, हम लड़ भी किससे रहे होते हैं? उस रेहड़ी वाले से जो खुद किसी का मुलाजिम था। वो खुद बेचारा गरीब था जो सेठ के कर्ज पर दिया हुआ माल बाजार के एक नुक्कड़ पर बेच रहा था, इस उम्मीद के साथ कि आज बच्चों के लिए चंद पैसे कमा कर ले जाऊंगा। इंसान भी कितना अजीब है ना, ताकतवर के आगे सर झुकाता है और गरीब के आगे चौड़ा होकर फिरता है। इस पूरी महंगाई में और कीमतें बढ़ने का असर एक गरीब पर ही हुआ, चाचा शहजाद, जो शहर के एक कच्चे घर में अपनी फैमिली के साथ रहता था। वो दिहाड़ीदार मजदूर था। रमजान का पहला जुमा था। शहजाद अफ्तारी के लिए बाजार गया। उसने बच्चों के लिए कुछ फ्रूट्स खरीदने का सोचा, मगर जब उसने कीमत पूछी तो खामोश हो गया। सेब बहुत महंगा, केला बहुत महंगा, अंगूर और भी महंगा। चाचा शहजाद ने जेब में हाथ डाला। चाचा शहजाद ने जब पैसे चेक किए तो वो कम थे। उसने सिर्फ खजूर का एक छोटा सा डब्बा खरीदा। घर पहुंचे तो बच्चे पूछने लगे, अब्बू फ्रूट्स नहीं लाए? चाचा शहजाद ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा खजूर सबसे बेहतरीन सुन्नत है, आज इसी से अफ्तार करेंगे। मगर वो जानता था कि ये महंगाई सिर्फ मौसम की वजह से नहीं थी और ना ही रमजानुल मुबारक की वजह से, बल्कि ये एक सिस्टम था, एक माफिया था, एक ग्रुप ऑफ चेन था जो अशिया की कीमतों को कंट्रोल कर रहा था। आपके जहन में भी यही होगा कि इनके खिलाफ कार्रवाइयां क्यों नहीं होती, गिरफ्तारियां क्यों नहीं होती? तो इसका जवाब है, कार्रवाइयां होती हैं, मगर छोटे पैमाने पर। एक रिपोर्ट के मुताबिक रमजान में कीमतें बढ़ाने वाले ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान में कई अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन ये माफिया इतना मजबूत है कि कानून से बचने के 1000 रास्ते पहले ही इनके लिए खुले होते हैं। जेल जाने से पहले बाहर निकलने का इंतजाम तयशुदा होता है। रिजल्ट क्या निकला? किसान को अपनी फसल की असल कीमत नहीं मिली और शहर में वही फ्रूट 3 गुना महंगा फरोख्त हुआ। और दरमियान में खड़ा था एक पूरा नेटवर्क, कमीशन एजेंट, गोदाम मालिक, ट्रांसपोर्टर, रेट सेटर। ये वो पिलर्स हैं जिन पर खड़ा है फ्रूट माफिया। और इसका सबसे बड़ा शिकार वो लोग हैं जो सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए मेहनत करते हैं। रमजान रहमत और बरकत का महीना है, मगर जब मंडियों में लालच का निजाम कायम हो जाए तो अफ्तारी के दस्तरख्वान से फ्रूट गायब हो जाता है और हजारों घरों में सिर्फ फाका होता है। बिल्कुल इसी तरह का एक माफिया रमजान में आपके आसपास एक्टिव है, जिसे बेगर्स माफिया कहा जाता है। इस नेटवर्क को भी हमने इस वीडियो में एक्सपोज किया है, देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में, जब तक जुर्म बाकी है।